Hello students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing good. So today's topic is the Great Indian Desert. Learning topics, climate, farming, life in the Great Indian Desert. To the southwest of the northern plains lies a large desert called the Great Indian Desert or the Thar Desert. It is a very hot, dry and sandy area which has very little vegetation. There is very low rainfall in this desert. तो आपके नॉर्दर्न प्लेन्स के साउथ वेस्ट पार्ट में आपके ग्रेट इंडियन डेजर्ट आते हैं. ये बिल्कुल भी फर्टाइल नहीं होते हैं, थोड़े बहुत होते हैं, ज़्यादा यहाँ बारिश देखने को नहीं मिलती है जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा ड्राई रहते हैं. द इंडियन डेजर्ट इज अ पार्ट ऑफ अ very large desert which extends beyond Pakistan into the Arabian desert. The western part of Rajasthan lies in this desert. जो आपका the Indian desert है ये बहुत ही बड़ा desert है. ये पाकिस्तान तक भी पहुंच जाता है आपके Arabian desert से होते हुए. The Great Indian Desert is a sandy plain. At many places there are small hillocks of sand. These are called the sand dunes. Dust storms are very common in deserts. They drift the sand from one place to another. Sometimes these storms blow so strongly that the sand dunes move hundreds of meters away from their actual position. ये जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है ये सैंडी प्लेन्स होते हैं. यहाँ पे आपको अलग अलग जगहों पे सैंड ड्यून्स भी देखने को मिलेंगे. सैंड ड्यून्स यानी कि छोटे छोटे सैंड के पहाड़, और ये जो होते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म्स लेते हुए जाते हैं जिसकी वजह से सैंड एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है. Knowledge Corner. The Sahara Desert in Africa is the world's largest desert. अफ्रीका में आपका सहारा डेजर्ट है जो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बड़ा है. Climate. The desert has an extreme climate. During summers, the days are very hot. During the daytime, the sand gets heated quickly and it is very difficult to step out. However, after the sunset, it cools down, making nights invariably very cold. तो यहाँ का जो टेम्परेचर होता है या क्लाइमेट होता है एक्सट्रीम होता है. दिन में इतनी ज़्यादा गर्मी होती है सैंड की वजह से और टेम्परेचर बढ़ जाता है कि आप बाहर निकल ही नहीं पाएंगे. लेकिन रात होते होते जैसे ही सूरज ढल जाता है यहाँ पे वापस ठंडा हो जाता है. तो दिन में बहुत गर्मी होती है और रात में बहुत सर्दी होती है. There is very little rainfall in this region. Some parts of the desert do not get rain at all for many years. There are no permanent rivers. In the rainy season, the Luni, which is a small river, get filled up with water. But the water does not last long as it dries up fast. तो ऐसे regions में आपको बारिश देखने को नहीं मिलेगी. बहुत कम बारिश होती है, रिवर तो होती ही नहीं है. जब कभी थोड़ी बहुत बारिश होती है तो यहाँ पे लूनी नाम की एक रिवर जो होती है फॉर्म हो जाती है, और इसी के साथ साथ यहाँ पे कोई भी परमानेंट रिवर आपको देखने को नहीं मिलेगी. Water. There is always a shortage of drinking water in the desert areas. Because of the scarcity of water, there is hardly any vegetation. Only thorny bushes, shrubs, cactus and kikar grow here. These plants and trees are specially adapted for the hot and dry climate of the desert. अब क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, रिवर आपको देखने को नहीं मिलेगी, तो यहाँ पे पीने वाले पानी की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज रहती है. साथ ही साथ यहाँ पे आपको थॉर्नी बुशेस, कैक्टस जैसे प्लांट्स दिखाई देते हैं जिनको ज़्यादा प्लांट्स को पानी की ज़रूरत नहीं होती है. At some places in the desert, the underground water comes to the surface and forms a big pool. Date palm and other trees grow around it. Such a green and watery spot in the desert is called an oasis. और इन्हीं एरियाज में कभी कभी अंडरग्राउंड वाटर ऊपर आ जाता है जहाँ पे एक छोटा सा पॉन्ड फॉर्म हो जाता है. इसके आसपास आप अलग अलग टाइप के पाम ट्रीज ग्रो होते हुए दिखाई देंगे, और ऐसे थोड़ी ग्रीन एरिया आपको डेजर्ट में जहाँ दिखाई देते हैं उनको ओसिस कहा जाता है. Knowledge Corner. In some areas of Rajasthan, people have to walk 4 to 5 kilometers to get a bucket of water. अभी भी राजस्थान के कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे लोगों को 4 से 5 किलोमीटर डेली ट्रैवल करना पड़ता है पानी लेने के लिए. Many people live near an oasis and grow crops here. Villages come up around the oasis. Travelers and caravans in a desert rest in an oasis as they get water for themselves and their animals.
ज़्यादातर लोग यहाँ के जो आपको दिखेंगे ओसिस के पास ही आपको दिखेंगे, क्योंकि वहाँ पानी होता है तो वहाँ पे ये लोग रह भी सकते हैं और साथ ही साथ उसी पानी को कल्टिवेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। लाइफ इन द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। द लाइफ इन द डेजर्ट रीजन इज completely different from the life in the northern mountains and the northern plains because the climatic physiography of the desert region is entirely different from that of the mountains and the northern plains. Northern plains और northern mountains से जो deserts हैं उनकी जो life है बहुत ही ज़्यादा different है बिकॉज ऑफ द रीज़न कि यहाँ पे पानी की स्कैरसिटी बहुत ज़्यादा है, लैंड अलग है, तो यहाँ की जो लाइफ भी है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। Rajasthan, more or less, is a desert state of India. It is the largest state of India, much bigger than Uttar Pradesh in area, but its population is very less. The Great Indian Desert region is sparsely populated due to the following reasons: shortage of water for domestic and agricultural use due to uncertain rainfall pattern, harsh climatic conditions, uneven sandy land surface which makes construction of houses, road and rail network difficult. जो राजस्थान है बहुत ही बड़ा स्टेट है, उत्तर प्रदेश से भी ज़्यादा बड़ा स्टेट है एरिया वाइज, लेकिन यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे पानी की समस्या है, पानी यहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है तो लोग यहाँ पे कम रहते हैं। यहाँ का जो लैंड होता है अनइवन होता है, वैसा सैंडी एरिया होता है जिसकी वजह से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एक्टिविटी: फाइंड आउट द नेम्स ऑफ सम क्रॉप्स दैट कैन बी ग्रोन इन एरियाज रिसीविंग लेस रेनफॉल। अब आपको ऐसे कुछ क्रॉप्स के नाम ढूंढने हैं जिनको कम रेनफॉल की जरूरत होती है। द रियल डेजर्ट लाइज टू द वेस्ट ऑफ द अरावली हिल्स। द डेजर्ट इज कॉल्ड द ग्रेट इंडियन डेजर्ट और द थार डेजर्ट। इट ऑल्सो एक्सटेंड्स टू पाकिस्तान। जो असली डेजर्ट आपका आता है वो वेस्ट ऑफ द अरावली हिल्स के साइड आता है, इसका नाम है ग्रेट इंडियन डेजर्ट या फिर थार डेजर्ट, और ये एक्सटेंड करता है पाकिस्तान तक। Some people live around oases and grow a few crops of maize and millets, etc. Most of the villagers keep camels, sheep and goats. They move from one place to another in search of fodder and water for their animals. They are called banjaras. ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जो ओसिस से दूसरी अलग अलग जगहों पर जाते हैं फॉडर के लिए, चारे के लिए, अपने जानवरों को खाना खिलाने के लिए, और ऐसे लोगों को कहा जाता है बंजाराज। Traveling in the desert is very difficult due to hot sand and fast blowing winds called dust storms or sandstorm. The camel is the only animal that can easily walk on sand. It can store water in its hump. Its feet don't sink into the sand. It has two sets of eyelids to protect its eyes from dust or sand. It can survive on the thorny desert vegetation. Due to all these reasons, the camel is called the ship of the desert. Some people rear sheep and goats on the desert margins. डेजर्टेड एरियाज क्योंकि सैंड से बने हुए होते हैं, दिन के टाइम पे धूप जब पड़ती है तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप उसमें नंगे पाँव या चप्पल के साथ भी नहीं चल सकते हैं। यही रीज़न होता है कि ऐसे रीजन्स में ट्रैवल करना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए लोग कैमल्स का यूज़ करते हैं। कैमल ही एक ऐसा जानवर है जो वहाँ पे लंबे टाइम के लिए बिना पानी के भी सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि वो अपने हम्प में अपना पानी स्टोर कर लेता है। There are few roads and rail tracks in the desert. People in the desert move in the groups with their camels. It is called a caravan. जो डेजर्ट वाले एरियाज होते हैं वहाँ पे कहीं कहीं पे रोड और रेल नेटवर्क्स हैं। जो लोग होते हैं वो अपने कैमल्स के साथ इधर से उधर ट्रैवल करते हैं और ऐसे लोगों को कहा जाता है कारवां। ग्रुप में करते हैं ये, झुंड में। The life of the desert people is very hard. In some areas they have to walk for several kilometers to get water. वहाँ के लोगों की ज़िंदगी बहुत ही कठिन होती है क्योंकि इनको बहुत दूर दूर तक ट्रैवल करना पड़ता है पानी लेने के लिए। Farming. The main food items are millets and maize. They also use some wheat and rice. Date palms grow around an oasis. The desert soil is sandy, but it can be made fertile by using irrigation water. जो फार्मिंग होती है वो इनका मेन ऑक्यूपेशन होता है। पानी ये लोग कहीं ना कहीं से इकट्ठा करके या फिर ट्यूबवेल से अरेंज करके अपनी लैंड को इरिगेट करते हैं। इंदिरा गांधी कैनाल has changed a large barren land into fertile land. This canal takes water from the confluence of
Satluj and Beas rivers and irrigates a large area of the desert. With the help of irrigation, several crops like wheat, cotton, groundnut, sugar cane, rice and pulses etc. are grown in this area. इंदिरा गांधी कैनाल जो है उन्होंने यहाँ की जो बिल्कुल हालत थी उसे काया पलट कर दिया है, क्योंकि उसी की मदद से यहाँ पे अब इरिगेशन के लिए बहुत सारा पानी इनको इकट्ठा मिल जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे क्रॉप्स जैसे कि ग्राउंडनट, शुगर केन, कॉटन ऐसे क्रॉप्स यहाँ पर ग्रो कर पाते हैं अब लोग. The people of the desert are very fond of singing and dancing. Ghumar is very popular folk dance of Rajasthan. The festivals of Gangaur and Teej are celebrated with great enthusiasm by women. The traditional dress of men is dhoti kurta with a turban, and the traditional dress of women is lehenga chunri. They are also fond of jewelry made of silver or ivory. Some of the desert people are famous Kathputli प्लेयर्स. यहाँ के जो लोग होते हैं अलग टाइप का इनका एक स्पेशल फोक डांस होता है जिसका नाम घूमर होता है. यहाँ की जो औरतें होती हैं तीज जैसे त्योहार मनाती हैं. घाघरा चोली इनका बहुत ही एक फेमस पोशाक है. साथ ही साथ यहाँ के जो लोग होते हैं ये काफी फेमस टाइप के कठपुतली प्लेयर्स भी होते हैं. द मेन लैंग्वेजेस स्पोकन इन राजस्थान आर हिंदी एंड राजस्थान. देयर आर सम माइंस ऑफ माइका, कॉपर एंड जिंक इन राजस्थान. ऑल्सो सैंडस्टोन एंड मार्बल आर फाउंड हियर. द पीपल ऑफ राजस्थान आर गुड इन हैंडीक्राफ्ट्स. Marble work, jewelry, embroidery and poetry of Rajasthan are famous all over the world. यहाँ की जो मेन लैंग्वेज है राजस्थान की वो है हिंदी और राजस्थानी. यहाँ के लोग पॉटरी में बहुत ज़्यादा फेमस है. ऑल अराउंड द वर्ल्ड इनकी जो पॉटरी होती है, जो मिट्टी की ये चीज़ें बनाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है. साथ ही साथ ये मार्बल वर्क भी करते हैं. बहुत सारे अलग अलग टाइप की हैंडीक्राफ्ट्स बनाते हैं जो फेमस हैं. और यहाँ पे आपको माइका, कॉपर और जिंक की माइंस भी दिखाई देंगी. Rajasthan is famous for its historical forts and palaces. The capital of Rajasthan is Jaipur. It is a famous tourist center. It was founded in 1727 and is called Pink City for its trademark building color. At the center of its stately street grid, notable in our country, stands the opulent, columned city palace complex. With gardens, courtyards and museums, part of it's still a royal residence. जो राजस्थान है यहाँ बहुत सारी हिस्टोरिकल फोर्ट्स हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं. इसकी कैपिटल जयपुर है जिसे पिंक सिटी भी कहा जाता है बिकॉज ऑफ द कलरफुल स्ट्रक्चर और द कलरफुल अपीयरेंस ऑफ द बिल्डिंग्स. नॉलेज कॉर्नर. The Taj Mahal is built of white marble which was brought from Rajasthan. जो ताजमहल बनाया गया है वो white marble से बनाया गया है जो राजस्थान से मंगवाया गया था. Udaipur is famous for its lake. चित्तौड़गढ़ has the biggest fort in the country. उदयपुर अपनी लेक्स के लिए फेमस है और चित्तौड़गढ़ में सबसे ज्यादा बड़ा फोर्ट है, आपका बिगेस्ट फोर्ट है ऑफ द कंट्री. Mount Abu in the Aravalli Hills is a famous hill station of Rajasthan. Dilwara Temple is a famous temple near Mount Abu. Ajmer is famous for the Dargah of Moin Uddin Chishti. Pushkar is a famous pilgrimage site for Hindus and Sikhs. It has many temples. Mount Abu भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अरावली हिल्स पे, जो टूरिस्ट के लिए एकदम मेन अट्रैक्शन पॉइंट है. दिलवारा टेम्पल भी मिलेगा माउंट आबू के पास. अजमेर में आपको दरगाह भी मिलेगी चिश्ती की. पुष्कर जो है जो हिंदूज और सिख्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है. Knowledge Center. Jaipur is called the Pink City of India because most of its buildings are of pink color. जयपुर को पिंक सिटी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे जो वहाँ की घर होते हैं या बिल्डिंग्स होती है, मोस्ट ऑफ द हाउसेज एंड बिल्डिंग्स आर पेंटेड पिंक कलर के होते हैं. द हाउसेज हैव फ्लैट रूफ्स, थिक वॉल्स एंड स्मॉल विंडोज टू कीप कूल. बाउलीज और स्टेप वेल्स आर कॉमनली फाउंड इन राजस्थान एंड गुजरात. यहाँ के जो रूफ्स होते हैं वो फ्लैट होते हैं, थिक होते हैं और छोटे होते हैं ताकि ठंडे रहें. साथ ही साथ यहाँ पे आपको बाउलीज भी मिलेंगी. स्टेप के नीचे इनकी बाउलीज होती है जहाँ पे पानी होता है. ये आपको राजस्थान और गुजरात में काफी सारी मिलेंगी. Many huge houses called Havelis, palaces and forts are also found in this region. The forts and palaces were the homes of the Rajput kings in the past. तो यहाँ पे आपको बड़े बड़े महल भी दिखाई देंगे जो राजपूत किंग्स थे वो यहाँ पे रहा करते थे.
As we know, the government of India has directed the water of river Satluj to Rajasthan with the help of Indira Gandhi Canal. This has helped farmers to grow wheat, jawar and bajra in Rajasthan. तो सतलज रिवर का जो पानी है उसको डाइवर्ट कर दिया गया है इंदिरा गांधी कैनाल के थ्रू राजस्थान की तरफ, ताकि यहाँ पर कल्टीवेशन हो पाए और इसकी वजह से यहाँ के फार्मर्स वीट, जवार और बाजरा भी ग्रो कर पा रहे हैं. The people of this region wear colorful clothes that have glass work and sequin work. यहाँ के जो लोग कपड़े पहनते हैं वो काफ़ी ब्राइट होते हैं, कलरफुल होते हैं और साथ ही साथ उसमें ग्लास वर्क और सीक्विन का काम करा हुआ होता है. In the cities, western dresses are popular. Jaisalmer is the heart of the Thar Desert, is famous all over the world for its impressive and grand Havelis. It is known as the Golden City and is distinguished by its yellow sandstone architecture. A large number of tourists from all over the world visit Rajasthan every year. जैसलमेर जो है थार डेजर्ट का बिल्कुल हार्ट है. ये अपनी फेमस है अपनी बड़ी बड़ी हवेलीज के लिए और अपने सैंडस्टोन के आर्किटेक्चर के लिए. Now I know the great Indian desert lies to the southwest of the northern plains. Only thorny bushes, shrubs and cactus grow here. At some places in the desert, underground water comes up to the surface forming pools. Such a place is called an oasis. The real desert lies to the west of the Aravalli hills. Rajasthan is famous for its historical forts and places. The Indira Gandhi Canal has made it possible to grow crops in the desert. So students, इस चैप्टर में हमने देखा कि डेजर्ट्स जो होते हैं, ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहाँ पे लाई करते हैं, यहाँ की लाइफ किस तरीके से पहले थी, इंदिरा गांधी कैनाल बनने के बाद किस तरीके से यहाँ के लोगों के लिए इरिगेशन और कल्टीवेशन कितना आसान हो गया. सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर और इसकी जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं वो आपको खुद से करनी है.